Hello everyone. In this video, we will be learning about international human resource management. And here we will learn the meaning, need, concept, definition and functions of international human resource management. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy, where learning and education is imparted in an easy way. If you're new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's start discussing the topic. Here we will discuss the human resource management activities. Human resource management refers to those activities undertaken by an organization to utilize its human resources effectively. For any organization, the most important asset is human resources because it is the human resource who can think and take decisions, and based on those decisions an organization grows in future. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स ही वह एक एसेट है जिसके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं और वही डिसीजंस एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वह सभी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करना है उसको करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं. दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Human resource management as a business practice comprises several processes which used together are supposed to achieve the organizational goals. These practical processes include basic HRM functions. Basically, human resource management includes the basic HRM functions. What are those? The first one is workforce planning, recruitment, induction, orientation, skills management, training and development, personnel administration, compensation in wage or salaries, time management, job evaluation, job analysis, performance appraisal, personnel cost planning, payroll, employees benefit administration, and travel management. So these are the basic HRM functions that are included into human resource management. Here we will discuss the need of international human resource management. What is the need of IHRM? With the advent of globalization, organizations, whether big or small, have ceased to be local. They have become global. This has increased the workforce diversity, and cultural sensitivities have emerged like never before. International dimensions of business and the globalization of business have a significant impact on human resource management, and all this has led to the development of international human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नीड कहाँ से अराइज हुई? विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सभी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वे स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं या फिर लार्ज लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, वह सिर्फ लोकल बिजनेसेस नहीं रहे. मींस उन्होंने अपनी कंट्रीज की बाउंड्रीज को क्रॉस करके बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू किया. वह ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए. और जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पर बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू करता है तो वहाँ पर जो वर्कफोर्स एम्प्लॉयज रिक्रूट किए जाते हैं वह भी डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं. सो वहाँ पर वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी आ जाती है जिसकी वजह से कुछ कल्चरल सेंसिटिव इश्यूज अराइज होते हैं जो कि पहले नहीं होते थे. सो ये जो बिजनेस की इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं और ग्लोबलाइजेशन, इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर एक इम्पैक्ट पड़ा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हुआ है. इट हैज़ लेड टू द international human resource management. So where the need arise to handle, nurture the human resources to implement global strategy. इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नीड क्यों अराइज हुई, किन इश्यूज को हैंडल करने के लिए अराइज हुई? टू नर्चर ह्यूमन रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट ग्लोबल स्ट्रेटजी. ऐसे बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स जो इम्प्लॉय किया जाता है दैट में बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्रीज. सो यहाँ पर ग्लोबल स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की टेक केयर करनी है, उनको अटेंशन देना है बिकॉज उनमें डाइवर्सिटी है, कल्चरल इश्यूज आ सकते हैं, लैंग्वेज उनकी डिफरेंट है. तो
कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अटेंशन दे सकते हैं। हर एक कंट्री से जो हमने एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किया उनकी नीड्स डिफरेंट है, उनकी परसेप्शन डिफरेंट है, तो उसको जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज को नर्चर करेंगे तभी ग्लोबल स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो हियर द नीड अराइजेज टू डेवलप इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Globalization, that is also a need to develop IHRM. Global competitive advantage, because the global organization want to take the global competitive advantage because they are competing at the global level. There are many companies which are operating across the borders, and like multinational companies, global companies. So to do the to take competitive advantage, there is a need to develop international human resource management, cultural diversity among the employees, workforce diversity, language diversity, because the people belong to different countries, so there may be the language diversity and economic diversity in different countries. So this is the need that has led to development of IHRM. Here we will discuss the concept of international human resource management. IHRM can be defined as a set of activities in addition to all activities of domestic HRM aimed managing organizational human resources, especially expatriate employees at international level, that is across the national boundaries in global corporations, that are multinational companies, to achieve organizational objectives and achieve competitive advantage over competitors at national and international level. इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है, वह सेट ऑफ एक्टिविटीज जिसमें कि कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं, जिसमें डोमेस्टिक एचआरएम में जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन एक्टिविटीज के अलावा जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस की, डोमेस्टिक एचआरएम में जो हम एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं लाइक एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एटसेट्रा, उन डोमेस्टिक एचआरएम एक्टिविटीज के अलावा कुछ और एक्टिविटीज भी इंक्लूड की जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस परफॉर्म किया जा रहा है, नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म की जा रही हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए स्पेशली जो एक्सपैट्रिएट एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सपैट्रिएट एम्प्लॉय जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, एक्सपैट्रिएट एम्प्लॉयज़ वह एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आते हैं। सो उन एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना है जो कि उस कंट्री से बिलोंग नहीं करते। सो देयर में भी डिफरेंट कल्चरल इश्यूज, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होती है, तो उन इश्यूज को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए और बिजनेस ऑपरेशंस जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म की जा रही है उन इश्यूज को मैनेज करने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं दैट आर इंक्लूडेड इनटू इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और वह एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म की जाती हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए कॉम्पिटिटर्स पे एट नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर। जो हम अपनी होम कंट्री में बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहती है कंपनीज, उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर, बिकॉज वहां पर डिफरेंट मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, तो वहां पर कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं और हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, वह सभी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। So IHRM includes typical HRM functions such as recruitment, selection, training and development, performance appraisal and dismissal done at international level, and additional activities such as global skills management, expatriate management and so on. So IHRM में जो typical HRM functions हैं उनको इंक्लूड करने के साथ साथ कुछ एडिशनल एक्टिविटीज जैसे कि ग्लोबल स्किल्स मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉयज ग्लोबल लेवल पर रिक्रूट किए गए हैं उनकी स्किल्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, और एक्सपैट्रिएट्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है, द एम्प्लॉयज हु डू नॉट बिलोंग टू आवर कंट्री उनको कैसे मैनेज करना है, वह सभी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं IHRM। Here we will discuss some of the definitions of IHRM. The first definition is given by Taylor Bichler et al. In 1996. What this definition says: the set of distinct activities, functions, and processes that are directed at attracting, developing, and maintaining an multinational company's
It is the aggregate of various HRM systems used to manage people in MNC both at home and overseas. सो वह सभी डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज, फंक्शंस और प्रोसेसेस जो परफॉर्म की जाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए और मल्टीनेशनल कंपनीज के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो वह सभी एग्रीगेट एक्टिविटीज ह्यूमन रिसोर्स इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। और HRM सिस्टम यूज करते हैं लोगों को जितने भी ऑपरेशंस हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की एट होम मीन्स अपनी होम कंट्री में और अक्रॉस द बॉर्डर्स अपनी होम कंट्री के अलावा डिफरेंट कंट्रीज में जो बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए। Another definition by Boxell in 1992, international human resource management is concerned with the human resource problems of multinational firms in foreign subsidiaries such as expatriate management or more broadly with the unfolding HRM issues that are associated with the various stages of internationalization. तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न है वह सभी ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉब्लम से जो कि मल्टीनेशनल फार्म्स में अराइज हो सकते हैं, जो मल्टीनेशनल फार्म्स की फॉरेन सब्सिडरीज हैं कि दूसरी कंट्री में उन्होंने कल सब्सिडरी यूनिट सेटअप की है और वहाँ पर एक्सपैट्रिएट्स को काम करने के लिए भेजा गया जो अपनी कंट्री से बिलोंग नहीं करते, डिफरेंट कंट्री में बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए गए हैं। सो उन सभी इश्यूज को हैंडल करने के लिए, सभी प्रॉब्लम्स को से कंसर्न जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसको मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं। इसके अलावा वह HRM इश्यूज इंक्लूड किए जाते हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस इंटरनेशनलाइजेशन की, जो हम फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं इंटरनेशनल बिजनेस में जब कंपनीज एंटर करती हैं, domestic companies, then they turn into international company, then international company turn into multinational companies, then multinational goes into global company and global into transnational company. So different stages जो है internationalization की उसमें जो HRM issues arise होते हैं उससे associated activities international human resource management में manage की जाती हैं। Another definition by Mark Mendenhall, so to be more specific by outlining a few criteria relevant to a definition of IHRM. Here IHRM is concerned with HRM issues that cross national boundaries or are conducted in locations in other than the home country headquarters. तो IHRM में कौन सी इश्यूज को इंक्लूड किया जाता है? बेसिक HRM इश्यूज तो इंक्लूड किए ही जाते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे HRM इश्यूज जो कि क्रॉस करते हैं नेशनल बाउंड्रीज को, बिकॉज डोमेस्टिक HRM में हम वह इश्यूज इंक्लूड करते हैं जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज में आते हैं। तो IHRM में अक्रॉस द बॉर्डर्स जो इश्यूज अराइज हो सकते हैं, बिकॉज हम होम कंट्री हेडक्वार्टर के अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज में सब्सिडरी यूनिट एक कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप की है, वहां पर जो इश्यूज अराइज होते हैं उनसे कंसर्न्ड एक्टिविटीज भी IHRM में इंक्लूड की जाती हैं। IHRM is concerned with the relationship between HRM activities of organizations and the foreign environments in which the organization operates. IHRM concerned है रिलेशनशिप से, कैसा रिलेशनशिप जो कि ऑर्गेनाइजेशन की HRM एक्टिविटीज के बीच में है और दूसरा जिस फॉरेन एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। फॉरेन एनवायरनमेंट हियर मींस the countries in which the organization has set up its subsidiary unit and it is performing its business operations over there. तो जहां जहां पर जिस कंट्री में वह ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है वहां के फॉरेन एनवायरनमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, साथ ही जो बेसिक HR एक्टिविटीज उसके बीच के रिलेशनशिप से कंसर्न होता है IHRM. IHRM includes comparative HRM studies, for example, differences in how companies in Japan, Thailand, Austria, and Switzerland plan for upgrading of employees' skill and so on. तो IHRM इंक्लूड करता है कंपैरेटिव HRM स्टडीज, कंपैरेटिव HRM स्टडीज की जो हर एक कंट्री में
बिकॉज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, उसकी बिजनेस यूनिट जापान में भी है, थाईलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट कंट्रीज में है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हर एक कंट्री का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वह डिफरेंट है। तो एक कंपैरेटिव एचआरएम स्टडी भी की जाती है, जो कि आईएचआरएम इंक्लूड की जाती है, कि क्या डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंट कंट्रीज में, जो कि उसके बेसिस पे हम अपने प्लान्स बना सकते हैं, एचआरएम पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जा सकती हैं, कि कैसे हमने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को अपग्रेड करना है, उसके लिए प्लान्स, या फिर एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को मैनेज कैसे करना है, वह सभी प्लान्स उसके बेसिस पे इन बनाए जा सकते हैं। सो आईएचआरएम इंक्लूड करता है वह कंपैरेटिव एचआरएम स्टडीज इन डिफरेंट कंट्रीज। These are the definitions of international human resource management. Here we will discuss the major functions of international human resource management. What are these? The first function is recruitment and selection. Here the company employs new qualified candidates for international operations, and the selection requires choosing from this pool the candidate whose qualification most closely match the job requirements. यहाँ पर कंपनीज के द्वारा जो अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए उनको कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, उन कैंडिडेट्स को एम्प्लॉय किया जाता है। जो भी कैंडिडेट उस जॉब क्वालिफिकेशन को की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मैच करते हैं, उसको उस पूल में से चूज कर लिया जाता है। सो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कंट्रीज ये डिसीजन लेती हैं कि उनको किस तरह के एम्प्लॉयज रिक्रूट करने हैं, क्या वह उनकी होम कंट्री से बिलोंग करेंगे या होम स्टे करेंगे या फिर थर्ड कंट्री नेशनल्स होंगे, और उनकी उनके क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। बेस्ड अपॉन दैट कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है। Another important function is performance evaluation. There is a need of performance evaluation on work of employees, promotions, rewards, and layoffs. In multinational companies, performance appraisals are usually done annually and use a standardized evaluation form. यहाँ पर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी किया जाता है एम्प्लॉयज़ का, बिकॉज एम्प्लॉयज़ ऑल्सो बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्रीज। सो एम्प्लॉयज़ का वर्क इवेल्युएट किया जाता है कि क्या वह अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए दी गई हैं उसको सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे ही उनकी प्रमोशंस की जाती हैं, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, या फिर अगर अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं है, कॉन्टिन्यूसली परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो उनको ले ऑफ भी हो सकता है। सो मल्टीनेशनल कंपनीज में परफॉर्मेंस अप्रेजल जनरली एनुअल बेसिस पे किया जाता है। एक स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन फॉर्म होता है जिससे जो भी हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट्स उसको मैच किया जाता है, और यह देखा जाता है क्या एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वह अप टू द मार्क है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की जानी चाहिए, बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, तो क्या उनको उस कल्चर में को अडॉप्ट करने के लिए या फिर लोकल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से यह पता चल जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. It is aimed to offer sufficient training to personnel in a company and enable them to fulfill their goals as well as show better performance and growth with their work. At global level, human resource development expert must have responsibility for training and development of employees located in subsidiaries around the world. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड है। साथ ही जब फ्रेश कैंडिडेट्स को नए कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता है तब भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि वह ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए और जो उनको वर्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, जिस जॉब पर उनको रिक्रूट किया गया है, उसको उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और जो वर्क ये जॉब है उसको समझ सकें, और उसको समझाने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और टाइम टू टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी उनकी ग्रोथ के लिए, या फिर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है तो उनको टाइम टू टाइम भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। और ग्लोबल लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डिफरेंट सब्सिडरीज में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनकी क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। Another important function is remuneration and benefits. A good compensation system disperses salaries to employees that are internally equivalent and competitive within the marketplace.
The international organization must also consider the salaries of people who may transfer from other locations. International human resource management का important function है remuneration and benefits, because here the employees work from the different countries, तो वह एक अच्छा compensation package डिमांड करते हैं, अच्छी सैलरी डिमांड करते हैं, बिकॉज वह अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में काम करने के लिए आते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेकर जाते हैं, सो दे डिमांड अ गुड पैकेज। तो उनको रेमुनरेशन और बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं वो इस तरह दिए जाते हैं कि वह सेटिस्फाइड फील करें, ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों की सैलरीज को कंसीडर करना चाहिए और एक अच्छा रेमुनरेशन और बेनिफिट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट दे फील सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एंड वर्क with good enthusiasm. Another important function of IHRM is the labor relation. It is the function of IHRM which describes the role of management and workers in the workplace. In many countries, the government regulates labor relation practices. यह भी एक मेजर फंक्शन है IHRM का, जो कि डिस्क्राइब करता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स का क्या रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और गवर्नमेंट के द्वारा हर एक कंट्री में डिफरेंट लेबर रिलेशन प्रैक्टिसेस प्रिस्क्राइब की गई हैं, रेगुलेट की गई हैं, जो कि बिजनेस हाउसेस को फॉलो करनी पड़ती हैं, उनको अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं एज पर द लेबर रिलेशन प्रैक्टिसेस, एंड दे विल हैव टू कंप्लाई विद दिस लेबर रिलेशन प्रैक्टिसेस. Except the major functions which we discussed in the earlier slide, there are some other important functions of IHRM. What are those? Let's discuss these. The first is HR planning. What is HR planning? IHRM planning fills right number and right kind of people at right places and at the right time. Means फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की कितने रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम कहाँ से फिलफिल कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट किया जा सकता है। यहाँ एचआर प्लानिंग में यह डिटरमाइन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। और सब इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एचआर प्लानिंग में यह भी देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज रिक्रूट किए जाएंगे क्या वह होम कंट्री से बिलोंग करेंगे, जो सब्सिडी यूनिट में काम करने के लिए एम्प्लॉयज का सिलेक्शन किया जाएगा, या वहाँ से कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं। वह डिपेंड करता है जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए क्या जो लोकल पीपल हैं, होस्ट कंट्री नेशनल्स को एम्प्लॉय किया जाना चाहिए या होम कंट्री नेशनल्स को वहाँ पर भेजा जाना चाहिए, बिकॉज वो हेडक्वार्टर ऑपरेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर अदर कंट्री नेशनल्स को एम्प्लॉय किया जाना चाहिए। तो यह सभी प्लानिंग एचआर प्लानिंग में की जाती है। डिफरेंट सोर्सेज फाइंड आउट किए जाते हैं जहाँ से हम ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. Here the company employs new qualified candidates for international operations. And staffing is a major function of international human resource management. In global firms, the managing and staffing approach strongly affects the type of employees the company prefers. यहाँ पर ग्लोबल फर्म्स क्या करती हैं, यह देखती हैं कि किस तरह के एम्प्लॉयज कंपनी प्रेफर करती है। लोकल कल्चर का भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रैक्टिसेस पर इम्पैक्ट हो सकता है। क्या लोकल कल्चर है, किस तरह की प्रैक्टिसेस उस कंट्री में अडॉप्ट की जाती हैं एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट के लिए, जिस कंट्री में हमने सब्सिडरी यूनिट सेटअप किए हैं जहाँ पर बिजनेस ऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म की जा रही हैं। तो उन लोकल प्रैक्टिसेस या लोकल कल्चर को ध्यान में रखकर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया जाता है एम्प्लॉयज। Another important function is performance management. What is performance management? In multinational companies, performance appraisals are usually done annually and they use a standardized evaluation form. So performance evaluation is a complex task in international human resource management. इंटरनेशनल मैनेजर्स के लिए परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। क्यों? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में जो सब्सिडरी यूनिट्स है वहां पर काम कर रहे हैं। सो उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता उनकी परफॉर्मेंस को एक दूसरे से। हर एक कंट्री में एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के लिए अलग बेंचमार्क सेट किए जाते हैं, अलग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। और एम्प्लॉयज में बिकॉज कल्चरल लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी पाई जाती है, सो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना IHRM मैनेजर्स के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क है, एंड दैट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट.
Next important function is training and development. At global level, HR development expert must have the responsibility for training and development of the employees who are located in the subsidiaries around the world. यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बिकॉज एम्प्लॉयज़ फॉरेन असाइनमेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की नीड क्यों है बिकॉज एम्प्लॉयज़ को फॉरेन असाइनमेंट्स के लिए एज एन एक्सपैट्रिएट प्रिपेयर किया जाता है और एक मैनेजर्स का ऐसा ग्रुप प्रिपेयर किया जाता है जिसकी वर्ल्ड वाइड अप्रोच हो to prepare the expatriates and the managers for the worldwide operations training and development is a major function of IHRM. Another important function is knowledge transfer. In international human resource management, knowledge transfer is a major function. Expatriates एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है जो कि ग्लोबली मोबाइल एम्प्लॉयज का ग्रुप है और वह ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करता है तो यहाँ पर उन गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक रोल्स परफॉर्म किए जाते हैं एम्प्लॉयज के द्वारा फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है उसको इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए भेजा जा सकता है दूसरी कंट्री में ताकि वह नॉलेज वहाँ से वहाँ पर जो उसके पास नॉलेज है बिकॉज एक होम कंट्री का एम्प्लॉय है उसको जो उस कंट्री ने दूसरी कंट्री में सब्सिडरी यूनिट सेटअप की है वहाँ पर भेजा जाता है वह क्यों भेजा गया कि बिकॉज वह होम कंट्री से फैमिलियर है उसके पास हेडक्वार्टर्स की कंप्लीट नॉलेज है और वह अपनी नॉलेज वहाँ सब्सिडरी यूनिट में शेयर कर सके ताकि वहां पर बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली परफॉर्म किया जा सके साथ ही फॉरेन सब्सिडरी में किस तरह से बिजनेस प्रोसेसेस फॉलो की जाती हैं उनको सीख कर वह अपने कंपनी हेडक्वार्टर में वापस आता है और वह नॉलेज कंपनी हेडक्वार्टर में ट्रांसफर करता है तो इन इंटरनेशनल बिजनेस नॉलेज ट्रांसफर इज डन. Expatriates are seen as an important link between the parent organization and its foreign subsidiary, especially in terms of knowledge transfer. Next important function is leadership. In IHRM, managers act as managers for a group of managers. जो एक मैनेजर है उसको डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एज अ लीडर अपॉइंट किया जाता है सो लीडरशिप प्रोवोक्स द चेंजेस लीडरशिप से चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स गिव विजन एंड फॉलोअर्स मेक द चेंज हैपन In IHRM, managers have to lead a diverse workforce and bring a positive outcome. So IHRM में leadership का major function क्या है? Because यहाँ पर diverse workforce को manage करना है. Domestic HRM में जो workforce होती है वो एक ही तरह की होती है, same culture से belong करती है. But international human resource management में leadership एक complex task बन जाता है. Because एक leader जिस workforce को manage कर रहा है अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करती है तो वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव आउटकम लाने के लिए और चेंज लाने के लिए मैनेजर्स को ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन करने पड़ते हैं सो अ लीडर हैज़ टू प्रमोट यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज रादर देन द डाइवर्सिटी तो यहाँ पर लीडर्स को क्या करना पड़ता है यूनिकनेस को प्रमोट करना है कि जो डिफरेंट अलग अलग एम्प्लॉयज हैं डाइवर्स वर्कफोर्स है उसमें यूनिकनेस क्या है उसको प्रमोट करना है और उसके बेसिस पे लीड करना है ग्रुप को ताकि उसमें यूनिटी रहे और वह एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कोऑपरेटिवली वर्क करे ना कि उनकी डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टीम बिल्डिंग Team building is also an important function in IHRM. IHRM examines cultural problems involved in building and sustaining effective multinational, multicultural teams. Task forces or steering committees may be formulated across the borders to perform these operations. तो यहाँ पर डिफरेंट जो टास्क फोर्सेज हैं या फिर स्टीयरिंग टीम्स फॉर्मुलेट की जा सकती हैं किए जाते हैं ताकि टीम बिल्डिंग की जा सके बिकॉज द पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स सो यहाँ पर टीम बिल्डिंग एक नेसेसरी वर्क है दैट हैव टू बी परफॉर्म्ड इन IHRM. Another important function is salary and benefits. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉयज की सैलरी और बेनिफिट्स को भी कंसीडर करना चाहिए बिकॉज एम्प्लॉयज अपनी कंट्री को छोड़कर काम करने के लिए आए हैं सो दे एक्सपेक्ट हायर सैलरी एंड बेनिफिट्स so organization IHRM will have to fulfill this goal. Another important function is
global labor law. In many countries, government regulates the labor laws and organization follows them. तो ऑर्गेनाइजेशंस को उन ग्लोबल लेबर लॉज को फॉलो करना है एंड दैट इज ऑल्सो अ मेजर फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रेड यूनियन एंड नेगोशिएशन. International industrial relations deals with the complex relationship. What is this complex relationship? That is the relationship among the employers who employ the foreign nationals, employees of different nationalities, home and host country government, and trade unions of organizations which are operating in different countries. So IHRM will have to balance, will have to make a balance among the relationship of employer and employee, as well as the foreign nationals, employees who are belonging to the different countries, and the government of host and home country. Next important function is women in HRM. Because of advancement of women in corporate sector, more jobs are created for women in international business also, and that also plays an important role in international business because कॉर्पोरेट सेक्टर में जो विमेन है दैट हैज मेक एन एडवांसमेंट, बहुत प्रोग्रेस की है. इसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस में भी मोर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं विमेन के लिए एंड द विमेन ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक इश्यूज. Due to global competition, strategic issues have to be handled in IHRM, which IHR manager will have to manage. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबल कंपटीशन की वजह से बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं. ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू परफॉर्म, विल हैव टू मेक ग्लोबल स्ट्रेटेजीज कि कैसे कॉम्पिटिटर से compete करना है. डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म की जा रही हैं, अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. सो IHRM परफॉर्म अ मेजर फंक्शन इन दिस स्ट्रेटेजिक इश्यूज. Another important function is industrial relations. Industrial relations means role between employees and employers in any organization setting. तो यहाँ पर किस तरह के इश्यूज हैंडल आउट किए जाते हैं IHRM के द्वारा. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में, बिकॉज एम्प्लॉयज में बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, एम्प्लॉयर में बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्रीज, सो देयर में बी द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. सो IHRM विल हैव टू हैंडल दोज इश्यूज एज वेल एज द लेबर प्रैक्टिसेस. There may be different labor practices in different countries, so IHRM will have to follow those labor practices and make a balance between them. Next is cultural context. What is cultural context here? Because the employees are coming from the different cultures and IHRM performs a major function here. As we have already discussed the Hofstede's model of cultural dimensions, दे आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कल्चर, जिसकी वजह से एक कंट्री का जो कल्चर है दूसरी कंट्री से डिफरेंट हो सकता है बिकॉज उनकी अप्रोचेस डिफरेंट है. उनके कल्चर की कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जिसकी वजह से कुछ इश्यूज अराइज होते हैं और IHRM के फंक्शंस अराइज होते हैं, जैसे कि हमने हॉफस्टेडीज मॉडल में डिस्कस किया. पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, femininity versus masculinity, individualism versus collectivism, and time orientation. So ये different cultural dimensions हैं जिसको consider किया जाता है IHRM functions में. Another important function is managing diverse human resources. Because the human resources, employees are coming from the different countries, from the different locations and places, so there is diversity among them. And what is the function of IHRM? International human resource management will have to manage this diverse workforce. इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इस डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करना है, कैसे उसमें एक बैलेंस मेंटेन करना है ताकि वह ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करें. Next is structural issues. Here it is determined how to organize and staff the organization. It is complex function in international human resource management because the employees are coming from the different countries and there are different types of employees कि कैसे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करना है. यहाँ पर स्ट्रक्चरल इश्यूज हो सकते हैं. तो हर एक कंट्री में डिपेंड करता है टाइप ऑफ एम्प्लॉयज पे और वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट पे कि किस तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है. Next is evaluation. Evaluation means evaluation of HRM practices is done at regular intervals to make changes or improve them.
जो HRM प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जा रही हैं उनको टाइम टू टाइम इवेल्युएट किया जाता है, क्या वह प्रेजेंट कंडीशंस में या फिर उस कंट्री के एनवायरनमेंट में जहाँ पर बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म की जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग सुटेबल हैं, या फिर बिकॉज HRM प्रैक्टिसेस डायनामिक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, उनको चेंज किया जा सके। अब बिकॉज द बिजनेस वर्ल्ड इज अ चेंजिंग वर्ल्ड, डायनामिक वर्ल्ड है बिजनेस वर्ल्ड, कंपटीशन हाई है, बिजनेस प्रैक्टिसेस, लेबर लॉज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज होती रहती हैं, सो उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम टू टाइम इवेल्युएट किया जाए ताकि अगर उसमें कोई रिक्वायर्ड चेंजेस हैं तो वह चेंजेस किया जा सके और उसको इम्प्रूव किया जा सके फॉर growth of the organization. Next important function of IHRM is standards and ethics. So some standards and ethics should be followed in IHRM while managing the business operations. So IHRM managers will have to handle diverse workforce, diverse human resources. So they should make the policies and code of conduct for the workforce, because IHRM में diverse workforce को manage किया जाता है, different issues को, cross cultural issues को handle out किया जाता है, तो यहाँ पर एक code of conduct formulate किया जाना चाहिए workforce के लिए भी, और जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स और एथिक्स फॉलो किए जाएं, सो दैट देयर इज द यूनिफॉर्मिटी इन HRM फंक्शंस और उन HRM फंक्शंस को इफेक्टिवली एथिकल वे में परफॉर्म किया जा सके. So these are the important functions of IHRM. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. Please give your comments in the comment box about how did you like the video.